Assalamu alaikum dear students. Welcome to the course of International Relations for undergraduate classes conducted by ComSet Institute of Information Technology, Virtual Campus Islamabad. Today we will be studying our next unit, which is called National Interests. What is national interest? We will know about this after we do the summary of our previous lecture. In the previous lecture, which was about national power, in that we discussed about the concept of power. That power is something, it's the ability to control and influence the behavior of other people. Then after, we discussed and explained the concept of national power. And we defined national power is the capacity of a state to influence the behavior of other states, the action of other states in accordance to its own will. दूसरे states के behavior को और उनके action को control करना, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक इख्तियार करना, this is because of national power. Then we discussed some of the elements of national power. Elements of national power में हमने discuss किया कि population है, population ज़्यादा हो, quality बेहतर हो, so this would be a source of strength for that particular country. And similarly, then we discuss technology, and in that we discuss the military technology, we discussed communication technology, and we also discussed the industrial technology that would be a source of benefit for that particular country. Then we discussed the geography, कि जो geography है country की, it is also responsible for national power. Geography में उसका size आएगा, area आएगा, जितना area ज़्यादा होगा उतना ही वो उस country के लिए positive होगा. इसी के साथ country की location है, उसकी topography है, उसका climate है, उसकी weather conditions हैं, जिनको हमने detail से explain कर लिया है. इसी के साथ national character and morale है, जो कि वो determination है, वो support है, जो एक country को, एक government को अपनी आवाम से हासिल होती है, जिसकी वजह से वह गवर्नमेंट स्ट्रांग हो जाती है. इसी के साथ हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिस्कस किया कि किस तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू मोर रिसोर्सेज, लीड्स टू मोर फाइनेंस एंड देयरफॉर कैन कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल पावर. आफ्टर दैट वी डिस्कस द लीडरशिप. Leadership is very important because he provides direction to the organization. He provides the path and how it is done. He takes the lead. A leader should have many qualities. He should have sense of wisdom. He should have strength of character. He should be having a very polished personality. He should be able to unite people. He should be able to channelize the strength of its people, and therefore he sets the targets and can easily make the nation achieve its target. Then we discussed about diplomacy, which is called the brain of national power. If a country can negotiate well, if a country can talk well, if it can easily put its viewpoints before others and convince them, it can win support, it can win international friends, and therefore would be a source of power for a particular country. फिर हमने ideology को explain किया कि how ideology of a country is a source of power for them, because ideology integrates people, it unites them, it channelizes the energies of the people, it makes them active, it makes them struggle. And how do ideology emerge? हम ये भी कर चुके हैं कि ideology emerge होती है when people are suffering, when they are in a sense of frustration, when they are deprived of their rights. Then ideology emerged, and then it helped the people to achieve their targets, to achieve their goals. Then we discussed about the military preparedness, जो कि पिछले ज़माने में काफ़ी अहम जाना जाता था कि अगर किसी कंट्री में उसकी मिलिट्री प्रिपेयर्ड है, उसके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, उसके पास क्वालिटी वेपन्स मौजूद हैं, इसी के साथ द क्वालिटी ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो विद दिस the country would be very strong. And finally, we discuss the natural resources, that they are a source of strength to a particular country.
Then we discussed the limitation of national power and those factors which decrease the national power or balance of power, where the states combine together to balance the power of another state, or they go for different kind of techniques to balance the power of the adversary state. इसी के साथ इंटरनेशनल मोरालिटी है, बैनुल-अक़वामी कायदे हैं, कवानीन हैं जिसको स्टेट ने ओबे करना है, जिसकी वजह से भी उनकी पावर्स कम हो जाती हैं और एक स्टेट अपने तरीके से कोई भी मर्जी के काम नहीं कर सकता. Rather it has to follow the international law, it has to follow the international accepted principles and standards. Similarly, a state does not have the option to go against world public opinion. अगर कोई स्टेट वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ जाता है तो उसको निहायत सख्त रेजिस्टेंस का सामना होता है, क्योंकि अवामी राय किसी भी स्टेट को अपना काम पे मजबूर नहीं कर सकती. इसी के साथ डिसआर्मामेंट है. A power of a state can be controlled, can be decreased by taking weapons from it, and as a result the power of that state can be decreased. And then we discussed the role of international organizations, the role of UNO, which can also decrease the national power of different elements, because the state has to follow the international law, it has to follow the principles of the international organizations, and it has to work with the international states. As a result, the power of these states can be decreased. So this was a brief summary of the national power. Today our unit is about national interests, कौमी मफाद. क्वेश्चन है कि कौमी मफाद. इस चैप्टर में we will discuss about concept and definition of national interest. We will discuss about the development of national interest. Then the types of national interest, how to promote national interest and foreign policy. So these are some of the topics that we will be discussing in this unit. Let's begin our unit. Interest, mafad. The question is, what is interest? इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो कि एक स्कॉलर ने लिखी है, रोहन. उनके मुताबिक princes rule people and interests rule princes. निहायत ही इंटरेस्टिंग कोटेशन है. उनके मुताबिक princes rule people, बादशाह शहजादे लोगों पे हुकूमत करते हैं, and interests rule princes. लेकिन प्रिंसेस को कौन रूल करता है? उनके मफादात रूल करते हैं. वो अपने मफादात के गुलाम हैं, वो अपने मफादात की मानते हैं. तो ये इंटरेस्ट के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी बात हुई. The politicians use the term of interest to seek support for their action and policies, especially in external affairs. हमने देखा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के वर्ड्स यूज़ करके अपनी आवाम से सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं. वो किसी भी पॉलिसी पे, किसी भी स्टेप पे उसको नेशनल इंटरेस्ट का नाम दे के कि ये स्टेप या ये डिसीजन या ये पॉलिसी उस मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में है, इसीलिए अवाम से वो सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं. जिस तरह आपको यहाँ पे एक नारा नज़र आ रहा है कि सबसे पहले पाकिस्तान, which means the interest of Pakistan comes first. This is the policy that was used by one of the government to take support and to get support of the people for their policies. Now, a man has interest. एक इंसान के, एक आदमी के भी मफाद होते हैं. कौन से मफाद होते हैं? What types of interest? उसे हम कहेंगे उसके पर्सनल इंटरेस्ट, उसके ज़ाती मफाद. इनके ज़ाती मफाद में क्या आएगा? We will discuss this, but let's come to the state. अगर एक इंसान के ज़ाती मफाद हैं, so a nation being collection of man also has interest. क्योंकि एक स्टेट, एक रियासत, एक कंट्री जो कि बनती है बहुत ज़्यादा लोगों से, a group of people, a group of different types of groups,
मेक्स अ स्टेट, मेक्स अ नेशन, तो क्या स्टेट के भी इंटरेस्ट होंगे? तो जिस तरह एक आम इंसान के, एक आम आदमी के इंटरेस्ट होते हैं, इसी तरह एक स्टेट के भी इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि स्टेट इज मेड अप ऑफ मैनी मैन. सो इफ अ मैन हैज इंटरेस्ट, स्टेट बीइंग कंपोज्ड ऑफ मैनी मैन will also have interest, which is called national interest. इंसान के पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं और कौम के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं. What is a man's personal interest? एक इंसान के ज़ाती मफाद कौन से हो सकते हैं? Can you give me the answer? What are the personal interest of a man? सोचें इसके ऊपर. जी, चेक करते हैं. The personal interest of a man is security of life. अपनी जान की हिफाजत करना, अपनी जान की हिफाजत को यकीनी बनाना. Security of property, security of money. The person also wants fame. उसको नाम चाहिए, उसको शोहरत चाहिए, उसको सेल्फ इस्टीम चाहिए, उसको अपनी अना की तस्कीन चाहिए. So these are some of the personal interest. एक इंसान, एक आम आदमी इन चीज़ों के हसूल के लिए कोशिश करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट मे बी द नेशनल इंटरेस्ट, व्हाट मे बी द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ अ स्टेट या ऑफ अ नेशन. इन्हीं से आप एग्जांपल ले लें कि एक इंसान के, एक फर्द के जो इंटरेस्ट हो गया, सो द सेम वुड आल्सो बी एप्लीकेबल टू नेशन एज वेल. तो इनसे कुछ करीब करीब ही वो इंटरेस्ट हैं जो कि एक स्टेट के हो सकते हैं, जिसको आप नेशनल इंटरेस्ट कह सकते हैं. तो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ की जगह हम कहेंगे सिक्योरिटी ऑफ नेशन, अपने लोगों की हिफाजत करना, क्योंकि एक स्टेट में काफ़ी लोग हैं. सो द सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन, फॉर द फर्स्ट वन सिक्योरिटी ऑफ लाइफ. फिर एक इंसान की अपनी जो इंटरेस्ट है सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी है. सो फॉर द स्टेट it would be called security of land, अपनी ज़मीन की हिफाजत करना, जिसको हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी कह सकते हैं. सो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट. इसी तरह मनी फेम इंसान के लिए है, स्टेट के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ होल, सो दैट इट कैन मीट द नीड्स ऑफ द होल पीपल. It can meet the needs of the whole society. Therefore, it needs economic development. Similarly, we want fame, we want our self-esteem. A state wants international recognition, international identification. उसको जाना जाए, उसको माना जाए, उसको तस्लीम किया जाए. So this is what a state also wants. And similarly, a state wants prosperity. It wants economic happiness. It wants the welfare of all the people. So these are some of the interests which are called national interests. Let's define what is national interest. Remember, the concept of national interest is very vague and very unclear. This is very difficult to understand what is actually national interest, but we would try to understand itself, how much we can know this term. So it's difficult to exactly know a state's national interest because there would be different types of interest. According to Brookings Institute, that define national interest in these words: national interest is the general and continuing ends for which a nation acts. Brookings Institute के मुताबिक नेशनल इंटरेस्ट वो जनरल और कंटिन्यूइंग एंड्स हैं, वो अमूमी और मुसलसल एंड्स हैं, वो उनके टारगेट्स हैं, वो मकासद हैं, वो मनाजिल हैं जिसके लिए एक स्टेट, एक नेशन मुसलसल कोशिश करती है. तो ये आपके वो गोल्स हैं, वो मंजिल हैं जिसके लिए एक नेशन इकट्ठे होके उसके हसूल के लिए कोशिश करती हैं, क्योंकि नेशन ये समझती है कि जो टारगेट्स हैं, जो उसके एंड्स हैं, जो मंजिल और मकाम उन्होंने मुतय्यन किए हैं, वो उनकी फलाह के लिए, उनकी खुशहाली के लिए बेहतर है, तो वो उनको हासिल करने की कोशिश करता है और मुसलसल इसी जदोजहद में लगे रहते हैं. इसी तरह डाइक की डेफिनेशन है. अकॉर्डिंग टू डाइक, द इंटरेस्ट
which the state seeks to protect or achieve in relations to each other. ये भी काफ़ी सिंपल है कि ये वो इंटरेस्ट हैं, वो मफाद हैं जो कि एक स्टेट हासिल करने की कोशिश करता है या उसका दिफा करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है दूसरे स्टेट के मुकाबले में, क्योंकि इन इंटरनेशनल वर्ल्ड देयर इज़ अ कंपटीशन. एक स्टेट की एक टारगेट है और वो उसको हासिल करने की कोशिश करता है, उसी के मुकाबले में दूसरा स्टेट भी उसी तरह के टारगेट्स उसने बनाए हुए हैं, तो लिहाजा एक कंपटीशन है. तो आपने अपने इंटरेस्ट को भी सेव करना है, उसको प्रोटेक्ट भी करना है. सो द स्टेट्स आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एंड टू अचीव देयर इंटरेस्ट in relations to other states because other states are also trying to get the same targets. Morgenthau के मुताबिक a country's national interest is proportional to its capacities. बहुत ही इंटरेस्टिंग कोटेशन है मॉर्गेंथो की. मॉर्गेंथो के मुताबिक एक कंट्री के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो उसकी एबिलिटीज़ के साथ, उसके कैपेसिटीज़ के साथ प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जिसका मतलब ये हुआ कि जितनी किसी कंट्री की कैपेसिटी है, जितनी उसकी सलाहियत है, उतना ही उसका नेशनल इंटरेस्ट होता है. जिसका मतलब ये भी है कि अगर एक कंट्री की कैपेसिटी कम है, एक वीक कंट्री है, तो उसकी कैपेसिटी चूंकि कम है इसलिए उस कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट भी कम होगा. उसका ज़्यादातर जो दायरे कार होगा और जो इंटरेस्ट होंगे वो सिर्फ अपनी बका और अपने लोगों की खुशी से मुंसलिक होंगे. जबकि ऐसा स्टेट जिसकी पावर ज़्यादा है, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसकी सलाहियत ज़्यादा है, तो ऐसे स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट भी ज़्यादा होंगे, अजीम होंगे, ज़्यादा उसकी जो स्कोप है और रेंज है वो ज़्यादा होगा. इसकी मिसाल हम लेते हैं जो बिग पावर्स हैं, जिस तरह चाइना है, जिस तरह यूरोपियन पावर्स हैं, जिस तरह अमेरिका है. तो चूँकि उनकी नेशनल पावर्स ज़्यादा है, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए उनके नेशनल इंटरेस्ट भी उन्होंने ज़्यादा सेट किए हुए हैं. उनकी हर रीजन में, हर प्लेस में उन्होंने अपने कुछ टारगेट सेट किए हुए हैं. एंड देयरफॉर दे आर इंटरफेयरिंग और दे आर इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इन दोज एरियाज बिकॉज दे हैव मोर कैपेसिटी. सो मोर कैपेसिटी, देयरफॉर more national interest. This is what the Morgenthau says. Simply, the greater the capacity, the more the national interest. Example मैंने आपको यूएस की दे दी है. कार्ल मार्क्स, who is a socialist thinker, उसने भी एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है. According to Karl Marx, national interest is a hoax. There are no national interests. They are only class interest. तो मार्क्स चूंकि सोशलिस्ट है, वो सोसाइटी को देखता है और वो एक क्लास इंटरेस्ट की बात करता है. तो उनके मुताबिक नेशनल इंटरेस्ट तो एक ख्वाब ही जैसा है, एक सराब जैसा है, एग्जिस्ट नहीं करता. एक्चुअली नेशनल इंटरेस्ट क्लास इंटरेस्ट है. जो किसी मुल्क में सबसे बड़ी क्लास होती है, जो उसकी सबसे मजबूत क्लास होती है, जो उसकी सबसे डोमिनेंट ग्रुप होता है, तो उसका जो मकसद होता है, जो उसका अपना मफाद होता है, तो वो ही उस कौम का नेशनल इंटरेस्ट वो समझता है, वो बनाता है, और बाकी लोगों का उसमें कोई ख़ास किरदार नहीं है. सो वट एवर इज़ द स्ट्रॉन्गर ग्रुप, वट एवर इज़ द लार्जर ग्रुप, सो दैट ग्रुप सेट्स इट्स इंटरेस्ट which are basically called class interest, but then it is termed as, then it is named as national interest. Now let us understand the development of national interest. आखिर national interest का इर्तिका कैसे हुआ, कैसे इसकी growth है. So about national interest, it has a recent growth. It is not very old term, rather it is in use a few centuries earlier. In the early Middle Ages, national interest started as the interest of church. क्या मतलब है इसका कि मिडल एजेस में ये जो 14th 15th सेंचुरी है उसमें नेशनल इंटरेस्ट का नाम जब यूज़ किया जाता, सो इससे मुराद चर्च का इंटरेस्ट था. सो वट एवर वॉज द इंटरेस्ट ऑफ चर्च
it was called as national interest. तो जो भी ममालिक थे वो जो भी काम करते हैं तो उनका मकसद ये होता कि किसी तरीके से चर्च का इसमें इंटरेस्ट शामिल हो या चर्च को की दिफा की जाए या चर्च को फ़ायदा हासिल हो. So at that time whatever was the interest, it was linked to the interest of church because the church was very dominant. ये हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि the church, especially the Roman church, was very powerful and it has a very dominant role in the early mid-centuries, and therefore then there was a 30-year wars that you already know, and then finally we have the Peace of Westphalia. लेकिन उससे पहले the national interest was regarded as the interest of the church, and all the states were struggling to protect the church and its faith. तो वो चर्च के इंटरेस्ट कौन कौन से थे? वो ये थे कि पहले चर्च का दिफा किया जाए, टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च एंड इट्स फेथ. तो जो उसके अकायद हैं, जो उसके बिलीव्स हैं, उनका दिफा किया जाए. सो दीज वर द इंटरेस्ट ऑफ द चर्च एट दैट टाइम. सिमिलरली all the laws shall be in conformity with the church teachings. तो उस वक्त जितने भी लॉस कोई गवर्नमेंट बनाती या कोई किंग बनाता तो वो इंश्योर करता कि कोई भी लॉ चर्च की टीचिंग्स के खिलाफ नहीं है, क्योंकि फिर चर्च उस लॉ को नहीं मानती और उसको कैंसिल कर दिया जाता. So because of this, no law or even scientific knowledge or inquiry was allowed by the church, because it was the interest of church to defend church. So the national interest began or started as the interest of the church. And what were the interest of church? That we already discussed, to protect church, its faith, its beliefs and its teachings. So these were some of the interest of the church that started in the early Middle Ages. After Peace of Westphalia, when was Peace of Westphalia signed? It was signed in 1648. And you know what was the reason? Because there was a struggle between Protestants and the Catholics. And the Protestants were struggling hard to reform church and to decrease the power of church, which finally were successful, and as a result the power of church was weakened. तो अगर पावर ऑफ चर्च कम हो गई है, उसकी पावर को ख़त्म कर दिया गया है, तो बिकॉज ऑफ दिस द सेक्युलर फोर्सेस वॉन, एंड एज अ रिजल्ट द किंग एंड द प्रिंसेस बिकम इंडिपेंडेंट. तो चर्च का खात्मा हुआ, चर्च की पावर का खात्मा हुआ, और इसके साथ जो फोर्सेस थी हैं, जो कि मोनार्चिकल फोर्सेस थी, जिसमें किंग इन्वॉल्व है, जिसमें प्रिंस इन्वॉल्व है, तो उनकी पावर्स अल्टीमेटली नुमाया हो गई, वो पावरफुल हो गए, क्योंकि आखिर में वहीं जीत गए. तो जब जीत गए, इसका मतलब है कि अब जो भी इंटरेस्ट चर्च का होगा अब वो नहीं माना जाएगा, बल्कि अब चर्च का इंटरेस्ट तब्दील हो गया है इन द इंटरेस्ट ऑफ द किंग. So now the church has no role in the governmental affairs because the Treaty of Westphalia has been signed, and now the national interest was not the interest of the church, rather it was now regarded as the interest of the ruling class, the interest of the prince, the interest of the king. So the interest changed from the interest of church to the interest of the king or the interest of the ruling class. मतलब ये है कि चर्च की पावर ख़त्म हो गई, उसका मफाद ख़त्म हुआ, तो अब चूंकि किंग वजूद में आ गया है या किंग की पावर ज़्यादा हो गई है, प्रिंस की पावर ज़्यादा हो गई है, तो अब जो उनका इंटरेस्ट है उसको नाम दिए जाने लगा एज नेशनल इंटरेस्ट. ये सिर्फ अवाम के लिए ये नाम यूज़ किए जा रहे हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट बेसिकली किसका इंटरेस्ट था? वो किंग का इंटरेस्ट था, वो प्रिंस का इंटरेस्ट था. एंड व्हाट वर दोस इंटरेस्ट? दोस इंटरेस्ट वर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस किंगडम फ्रॉम अदर क्लेमेंट्स. अपने तख्त व ताज की हिफाजत करना, अपने मुल्क की हिफाजत करना,
और जो उसके बाकी दावेदार हैं उससे अपने स्टेट को बचाना, अपने तख्त को बचाना. दिस वॉज कॉल्ड द नेशनल इंटरेस्ट. Although it was the king interest, but it was misnamed as national interest. For the people, this was used as a national interest. इसी के साथ the protection and expansion of territory of state. और कौन सा इंटरेस्ट हुआ कि अपनी सरहद की हिफाजत करना और उसी के साथ उसका फैलाव करना, अपने स्टेट को, अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को मज़ीद बढ़ाना, उसको एक्सपेंड करना ताकि बाकी रियासतों को शामिल किया जाए. सो दिस वॉज आल्सो टर्म्ड एज वन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट. आफ्टर दिस द प्रोटेक्शन एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूलिंग डायनेस्टी और रॉयल फैमिली. अपने ख़ानदान की, अपने शाही ख़ानदान की हिफाजत करना और उनके इंटरेस्ट का, उनके मफाद का ख्याल करना. दिस वॉज अगेन टर्म्ड एज नेशनल इंटरेस्ट. तो इस ज़माने में वट एवर वॉज द नेशनल इंटरेस्ट, तो वो मफाद सिर्फ और सिर्फ उस बादशाह की, उस शहजादे की जो अपने मफादात हैं, जो उसके शाही ख़ानदान के मफादात हैं और अपने तख्तो ताज की हिफाजत करना है और अपनी सल्तनत का फैलाव करना है. सो दिस वर समथिंग कॉल्ड एज नेशनल इंटरेस्ट. आफ्टर दिस देयर came a struggle between monarch and democratic forces. अब चूंकि बादशाह भी, रूलिंग क्लास भी, जो प्रिंसेस है वो भी रूल कर रहे हैं, इसी के साथ साथ लोगों में भी शऊर हासिल हो रहा है, लोग भी एजुकेट हो रहे हैं, लोगों को भी अवेयरनेस आ रही है. सो नाउ देयर स्टार्टेड अ स्ट्रगल बिटवीन मोनार्क और द रूलिंग क्लास एंड द पीपल. सो वी हैव अ स्ट्रगल बिटवीन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एंड द monarchical forces. इनकी वजह से आखिर में, as we see in the history, that the victory of the people was occurred and parliament was stronger over monarch. तो किंग की पावर कम हो गई, इसकी वजह से जो अवाम है उनकी ताकत बढ़ गई. अब किंग की पावर या तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है, उसकी जगह एक रिपब्लिक का वजूद में आ गया है जिसमें लोग अपने वोट के ज़रिए अपनी हुकूमत को मुंतखब कर रहे हैं. या जहाँ कहीं पे भी किंग या क्वीन का वजूद बाकी रह गया तो उनकी पावर्स को कम कर दिया गया और उनकी पावर्स को दे दिया गया टू द पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर. एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिक फोर्सेस वर स्ट्रॉन्गर एंड द मोनार्चिकल फोर्सेस वर वीक. सो आफ्टर दिस द नेशनल इंटरेस्ट became the interest of the people as a whole. क्योंकि अब एक क्लास नहीं है, अब चूंकि वो जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, वो लोगों की वजह से वजूद में आ रही है, लोग उसके लिए वोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो गई है. अब वो अवाम के हकूक़ के लिए और अवाम के मफाद के लिए काम कर रही है, अपनी नेशन के लिए काम कर रही है. तो अब सही मानों में नेशनल इंटरेस्ट का वजूद सामने आ गया. So the national interest now shifted from interest of monarch to interest of the people, also interest of the nation, which is actually called national interest. So this was a brief summary of the development of national interest. कि ये पहले शुरू हुआ चर्च से, पहले इसको चर्च का इंटरेस्ट कहा जाता, फिर उसके बाद this transferred to the interest of the monarch, the interest of the ruling class, and finally it shifted to the interest of the people or interest of the nation, which is now called national interest. I hope you have understand the development of national interest. There are also some kind of national interest. Let us understand what are the different types of or the different kinds of national interest. According to Robinson, there are 6 categories of national interest. वो 6 categories कौन-कौन से हैं? Number 1, it is primary. Then we have secondary interest. Then it's called permanent interest, variable interest, general interest, and specific interest. ये इंटरेस्ट की 6 किस्में हैं
according to Robinson. Let us understand them point by point. The first is called primary interest. What is primary interest? जैसा कि नाम से नज़र आ रहा है कि ये प्राइमरी है, जिस तरह हमारी प्राइमरी क्लास है जो कि पहले है, फिर उसके बाद सेकेंडरी क्लास आती है जो उसके बाद है. So similarly, primary interest are those interest which comes first, and because they comes first, therefore they are very important. They are most important for the existence of a state. एक स्टेट के वजूद के लिए इन इंटरेस्ट को काफ़ी अहम जाना जाता है, इनका रोल काफ़ी ज़्यादा है. आखिर ये इंटरेस्ट कौन सी हैं? काफ़ी अहम है, और इन इंटरेस्ट को बचाने के लिए अ स्टेट मस्ट डिफेंड दैम एट ऑल कॉस्ट. एक रियासत हर सूरत में, हर कंडीशन में अपने प्राइमरी इंटरेस्ट का दिफा करती है और इनकी हसूल के लिए कोशिश करती हैं, क्योंकि ये प्राइमरी है, ये बहुत पहले है, ये सबसे अहम है. तो लिहाजा इन इंटरेस्ट का हसूल और इनकी प्रोटेक्शन, इनका बचाव, इनकी हिफाजत करना बहुत ज़्यादा अहम है. नो कॉम्प्रोमाइज और नेगोशिएशन इज पॉसिबल ऑन नेशनल इंटरेस्ट. इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज या बातचीत नहीं हो सकती है. एक स्टेट ने हर हाल में, हर कीमत पे इनका दिफा करना है और इनका हसूल करना है. इट्स प्रोटेक्शन इज़ वेरी सेक्रेट. इनका बचाव मुकद्दस जाना जाता है. एंड ऑल काइंड ऑफ sacrifice is made for achieving this kind of interest. So a country is always ready to make all kind of sacrifices to achieve this interest, because this is primary interest. So what interests are included in primary interest? The examples are, you can also think of some of the examples which are very important for a nation, and therefore there is no negotiation possible on these kind of interest. So what is in your mind about the examples of primary interest? आपने सोच लिया? Let's see if your answer is right. Protection of land and borders. अपने सरहदों की और अपनी ज़मीन की हिफाजत करना, क्योंकि ज़मीन रहेगी या आपकी टेरिटरी रहेगी या तो आप लोग महफूज होंगे और आप लोग उसके ऊपर रह सकते हैं. अगर आपकी ज़मीन नहीं रही, अगर आपकी बाउंड्री नहीं रहे, अगर आपका बॉर्डर नहीं रहा, सो द स्टेट जस्ट वैनिशेस, आपका मुल्क ही नहीं रहा. इसलिए एक रियासत और उसके अवाम और उसकी गवर्नमेंट हमेशा अपनी इसी राइट्स को हासिल करने के लिए, इसी इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए सब कुछ दाव पे लगा देती है, इवन अपने जानों का नजराना दे देती है. दे मेक ऑल काइंड ऑफ sacrifices to achieve this kind of interest, which is the primary interest of a nation. Similarly, the protection of all people living in the state, उस मुल्क में, उस रियासत में जितने भी लोग हैं, उनकी हिफाजत करना, उनकी जान की हिफाजत करना भी सबसे अहम जिम्मेदारी है. So the protection of all the people, all diverse group of people, even minorities, even small groups, all these are regarded as the primary interest of a nation. And similarly, the protection and preservation of political institution is also regarded as the primary interest. मतलब क्या है? अपने सियासी जो इदारे हैं, जो भी उसकी गवर्नमेंट है, उसकी हिफाजत करना, दिस इज अगेन वन ऑफ द प्राइमरी इंटरेस्ट. अगर किसी मुल्क में बादशाहत है तो वो अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देगा, जंगी भी लड़ेगा और उसे भी अपने हक को हासिल करने की कोशिश करेगा और कभी आसानी के साथ अपनी पावर नहीं देगा. अगर किसी मुल्क में जमहूरियत है तो वो मुल्क अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए हर किस्म की कोशिश करेगा. सो रिमेंबर, these are some of the examples of the primary interest which are non-negotiable and no compromise is made on these kind of interest. एक और भी एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है. It's the protection and preservation of culture. अपने सकाफत, अपनी तहजीब, इनकी हिफाजत करना, इनकी प्रमोशन करना, क्योंकि एक नेशन जो का जो कल्चर है वो उससे बेशबहा अकीदत रखती है, उसको बचाने के लिए काफ़ी
सीरियस होती है, तो द प्रोटेक्शन एंड कल्चर ऑफ अ स्टेट is again very important. What comes in these culture? It's language, literature, art, architecture, norms, values, customs, traditions. ये तमाम कल्चर में आते हैं कि एक नेशन अपने कल्चर्स को उसकी हिफाजत करने के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए हर किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करती है. And we see that because we were trying to protect these of our cultures, we finally demanded our homeland from British, and which finally gave us Pakistan. So these are very important primary interests. The second is secondary interest. As you can see, it is secondary, which means they come after primary. तो प्राइमरी इंटरेस्ट के बाद जो दूसरे अहम इंटरेस्ट हैं, जो कि इतने अहम तो नहीं है जितने प्राइमरी हैं, बट स्टिल दे आर आफ्टर द प्राइमरी इंटरेस्ट in their level, therefore they are also very important. What are some of the examples of secondary interest? Some of the examples are protection of citizen in foreign countries. अपने मुल्क के अंदर जो लोग हैं उनकी हिफाजत तो प्राइमरी इंटरेस्ट है, लेकिन इसके बाद जो लोग बाहर रहते हैं, जो कि मुसाफिर हैं, जो कि किसी और कामों की वजह से बाहर मुल्क में रहने पे मजबूर हैं, फिर उनकी हिफाजत करना भी बहुत अहम है. सो दिस कम्स एज अ सेकेंडरी इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन. और इसी के साथ इंश्योरिंग डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज फॉर द डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड देयर प्रोटेक्शन. अपने सफारती इदारों की हिफाजत करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, जहाँ जहाँ पे वो आबाद हैं, जिन जिन मुल्कों में उनकी तैनाती है, वहाँ पे उनके लिए सेफ माहौल पैदा करना, वहाँ पे उनके लिए इम्यूनिटीज़ कि उनके जो हकूक़ हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनको वो वहाँ पे मिले. सो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द सेकेंडरी इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन. द थर्ड इज़ permanent interest. What is permanent interest? As you can see, it is permanent. जिसका मतलब है कि ये काफ़ी लंबे अरसे तक जारी रहते हैं. एक स्टेट इनकी हसूल के लिए कोशिश करता है. इनमें तब्दीली बहुत जल्द नहीं आती, बल्कि अगर तब्दीली आती भी है तो वो वक्त के साथ साथ बहुत स्लोली, बहुत आहिस्तगी के साथ इनमें तब्दीली आती है. सो दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट are referred to the long term interest which remain constant for longer period of time. ऐसे इंटरेस्ट हैं किसी भी मुल्क के जो कि एक लंबे अरसे तक वहीं रहते हैं, यकसा रहते हैं, इनमें तब्दीली नहीं आती है क्योंकि ये परमानेंट इंटरेस्ट है, मुस्तकिल इंटरेस्ट है. The change in the permanent interest is rather slow, as a rapid change can invite resistance and resentment from ruling class, people, army, pressure group. तो ये जो इंटरेस्ट है, क्योंकि ये मुस्तकिल है, तो इनमें तब्दीली जल्दी नहीं आती है. ये काफ़ी अरसे तक एक स्टेट इनकी हिफाजत करता रहता है और इसके स्टैंड में कोई तब्दीली नहीं आती. ये मुसलसल अपने उसी मुस्तकिल जो उनके मफाद हैं उनका बचाव करता है, उनकी हिफाजत करता है, उनकी प्रमोशन करता है. तो तब्दीली की कोई पॉलिसी जल्दी नहीं आती. अगर फर्ज करें कोई तब्दीली है भी इनमें, तो वो वक्त के साथ साथ स्लोली और ग्रेजुअली इनमें तब्दीली आती रहेगी. एकदम तब्दीली इसमें मुमकिन नहीं है. अगर किसी स्टेट में एकदम इनमें तब्दीली आ गई एंड देयर इज अ रैपिड चेंज इन द परमानेंट इंटरेस्ट, तो इसकी वजह से काफ़ी अपोजिशन का सामना होगा, काफ़ी मुज़ाहमत का सामना होगा, काफ़ी इख्तिलाफ राय वहाँ पे पैदा होगा, जो कि रूलिंग क्लास जो उस वक्त की गवर्नमेंट है उसमें से वो इख्तिलाफ सामने आ सकता है, लोगों में आ सकता है. इसके अलावा जो आर्मी है वो उसके ख़िलाफ़ जा सकती है और उसके ख़िलाफ़ वो कोई इक़दाम ले सकती है. इसके अलावा बहुत से प्रेशर ग्रुप्स हैं जो भी उस तब्दीली की वजह से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं. सो लिहाजा मुस्तकिल मफाद वो मफाद है जो कि वक्त के साथ यकसां रहते हैं. अगर कोई तब्दीली आए भी तो वो वक्त के साथ साथ इतनी आहिस्ते के साथ आए कि उनको नोटिस करना डिफ़िकल्ट होता है. इसकी एग्जांपल दी जा रही है. इसके एग्जांपल में ब्रिटेन परमानेंट इंटरेस्ट
was one of the interest of Britain, which can be called as a permanent interest, is to ensure freedom of navigation in the oceans, to maintain control on her colonies and her trade. कि बरतानिया का हमेशा से ये एक मुस्तकिल मफाद रहा है कि जो समुद्री रास्ते हैं तो वो सेफ रहें, वो महफूज रहें, क्योंकि उसका मफाद ये था कि बरतानिया ने अपनी कॉलोनीज को बचाना था और वहाँ तक उन्होंने ट्रैवल करना था. तो अगर समंदर और समुद्री रास्ते और हदूद सेफ होंगे या हिफाजत से होंगे तो ब्रिटेन बरतानिया अपनी फ़ौज को, अपने लोगों को ईज़िली वहाँ तक पहुँचा सकता है और उन लोगों के साथ वो अपनी तिजारत कायम कर सकता है. तो लिहाजा ये उनका एक मफाद था कि ये जो ज़मीनी रास्ते, ये जो समुद्री रास्ते हैं, ये हमेशा सेफ रहे और यहाँ पे आज़ादी हो मूवमेंट की, ताकि कोई भी पावर उनकी इस इंटरेस्ट को कम ना करे. तो ये उनका एक काफ़ी अरसे तक एज अ परमानेंट इंटरेस्ट रहा है. इसी के साथ दूसरी एग्जांपल यूएस की है कि यूएस डेवलप्ड अ परमानेंट इंटरेस्ट इन द गल्फ रीजन टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑयल रिजर्वायर एंड सप्लाई. जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि जंगी अजीम दोम के बाद यूएस मुसलसल पूरी दुनिया में जितने भी रीजन्स हैं उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है और वहाँ पे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरफेरेंस रखता है. तो इसमें एक जो एग्जांपल है वो गल्फ स्टेट्स की भी है, जो गल्फ रीजन है. और जिस तरह आपको पता है कि गल्फ स्टेट्स किन ज़ख़ायर की वजह से मशहूर है जी, वो तेल और गैस के ज़ख़ायर की वजह से बहुत मशहूर है. तो बिकॉज ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and this petroleum resources are very important at present. Therefore, America has got a permanent interest in the Gulf states. तो वो वहाँ से अपनी इन्वॉल्वमेंट ख़त्म नहीं करना चाहता, तो वो मुसलसल इन्वॉल्व है गल्फ स्टेट्स में और वहाँ की कंट्रीज़ में और वहाँ की पॉलिटिक्स में, ताकि अपनी मौजूदगी वहाँ पे वो यकीनी बनाए. बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन नॉन एंडिंग इंटरेस्ट in this region to use the resources of this region for its own benefit. So this is again one of the example. The third example is again a very good example. It relates to the Muslim world. The Muslim states have a permanent interest in the holy places in Saudi Arabia, and similarly Jews have a permanent interest in Jerusalem. जिस तरह तमाम मुसलमानों के लिए जो मुक़द्दस मकामात हैं जो कि सऊदी अरब में हैं, तो उनके लिए वो काफ़ी मोहतरम है, and they try to protect those places. And similarly the Jews held the Jerusalem as a very sacred place, and their interest is always there in these kind of places. जिस तरह हमारे जितने भी मफाद हैं, हमारे जितने भी लाइकिंग्स हैं, हमारे जितनी भी ख्वाहिशात हैं, तो वो यही है कि ये जो होली प्लेसेस हैं मक्का और मदीना की है, तो ये हमेशा महफूज रहें और इनमें हमारा इंटरेस्ट कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि हमारा इंटरेस्ट हमेशा इसमें कायम रहेगा, क्योंकि दिस इज़ आवर बिलीफ and therefore becomes a part of our permanent interest. Similarly, Israel has a permanent interest in Jerusalem because that's a sacred place for them. So these are some of the examples of permanent interest. Let's come to variable interest. What are variable interest? You can see it's the opposite of permanent interest. Interest that may change and are not constant. तो ये मुस्तकिल मफाद के ज़रा से ऑपोजिट हैं कि ये वो इंटरेस्ट हैं जो कि वक्त के साथ तब्दील हो सकते हैं, एंड दे आर नॉट कांस्टेंट. दिस इंटरेस्ट मे चेंज, ये तब्दील हो सकते हैं. तब्दील क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे मफाद हैं जो कि वक्त के साथ साथ एक स्टेट अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो तरजीहात हैं, वो चेंज करता रहता है. एक वक्त में उसकी एक तरजीहात होंगी, दूसरे वक्त में उसकी तरजीहात उससे मुख्तलिफ हो सकती हैं. तो चूंकि तरजीहात में तब्दीली आ रही है, तो वो जो इंटरेस्ट होंगे दे वुड बी कॉल्ड वेरिएबल इंटरेस्ट. लेट्स सी द इंटरेस्ट, हाउ द वेरिएबल इंटरेस्ट मे चेंज, और व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मे चेंज वेरिएबल इंटरेस्ट.
Firstly, the change in government is also responsible for changing interest. अगर फर्ज करें कहीं पे कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से उनकी तरजीहात भी चेंज हो जाती हैं, जिनकी वजह से उनके नई गवर्नमेंट के नए इंटरेस्ट होंगे, उनके नए मफादात होंगे. एक गवर्नमेंट एक पॉलिसी पे स्ट्रेस कर रही होगी, दूसरी गवर्नमेंट आने के बाद उनकी तरजीहात डिफरेंट होंगी, क्योंकि उनका सोच डिफरेंट है, उनका मैनिफेस्टो डिफरेंट है, उनके टारगेट्स डिफरेंट हैं. इसलिए दे विल फोकस ऑन अनदर इंटरेस्ट. And therefore, due to the change in governments, the interest of a nation may change, and such interest would be called variable interest. Similarly, the change in the leader or the change in the ruler, एक तो गवर्नमेंट की चेंज है, उसमें हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो चेंज तो हो रही है लेकिन वही लोग वापस आ रहे हैं, सो दे मे नॉट बी बेसिकली वेरी मच अकाउंटेबल फॉर द वेरिएबल इंटरेस्ट. लेकिन साथ में अगर किसी मुल्क में लीडर चेंज हुआ या रूलर चेंज हुआ, दूसरा बादशाह आया, दूसरा वजीर आया, या कोई और गवर्नमेंट का अपना एक डिफरेंट लीडर आ गया, सो बिकॉज द पीपल or the ruling person may be having a different likings, different attitudes, therefore there will be a different interest as well. Similarly, the change in situation prevailing at the time, अगर वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आ रही हैं, एक वक्त की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशन चेंज होने के बाद रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंटरेस्ट भी चेंज हो जाते हैं. सो डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट टाइम्स डिमांड फॉर डिफरेंट इंटरेस्ट. एग्जांपल आपको एक दी जा रही है कि जिस तरह पाकिस्तान का आजकल जो इंटरेस्ट है वो एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा रहा है, उसका फोकस एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बिकॉज वी आर नाउ सफरिंग फ्रॉम एनर्जी क्राइसिस. वी हैव दिस acute shortage of energy, and because of this we are living in a very shortage resources at present. So what are the new interest of the government now? तो जो new government है उनकी interest क्या है? Their interest is energy crisis should be resolved, and therefore all of their steps or most of their steps and policies would be aimed at resolving this issue, and therefore taking such steps which can help in resolving एनर्जी क्राइसिस. तो उसके लिए फिर वो डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ मुआहदे भी कर सकती हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट ला सकती हैं, बिकॉज दे हैव टू रिजॉल्व दिस इशू एट प्रेजेंट. ये इंटरेस्ट में भी कुछ साल पहले नहीं था, लेकिन अब चूंकि वक्त का तकाजा है, सो देयरफॉर ड्यू टू चेंजिंग कंडीशन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड. सो सच टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज अगेन कैन बी कॉल्ड एज वेरिएबल इंटरेस्ट. Again, the variable interest can also be changed by another factor as well. For example, change in public opinion. अगर राय आमा में तब्दीली आ रही हो, जो अवाम की राय है उसमें तब्दीली आए. अवाम की राय में तब्दीली क्यों आती है? It may be due to some event, or it may be due to some need that happened at a particular time. अवाम की कुछ मुतालबे हैं, उनके कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिनकी वजह से तमाम लोगों की जो ओपिनियन है वो एक ख़ास पॉइंट पे आ जाती है, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट को मजबूर करती है कि वो एक ख़ास पॉलिसी बनाए. सो दिस काइंड ऑफ इवेंट्स may lead to variable interest. For example, India's nuclear explosion in 1998 intensified a public opinion in Pakistan. जिस तरह 1998 में इंडिया ने एटमी धमाके किए, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने अपने गवर्नमेंट में प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि वो भी इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर टेस्ट करे. तो ये एक बढ़ता हुआ अवामी दबाव था. इट वॉज अ ग्रोइंग पब्लिक ओपिनियन एंड विच फाइनली कंपेल्ड द गवर्नमेंट एट दैट टाइम टू ऑल्सो गो फॉर अ न्यूक्लियर टेस्ट, जिसकी वजह से उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी मजबूर होके ड्यू टू द पब्लिक ओपिनियन एटमी धमाकों का टेस्ट किया. सो दिस वॉज द इंटरेस्ट एट दैट टाइम. नाउ द गवर्नमेंट विल नॉट गो फॉर न्यूक्लियर टेस्ट अगेन बिकॉज देयर इज नो डिमांड. But the situation at that time
demand for the nuclear test. So you can see that this is one of the example of variable interest as well. Then pressure due to other political parties may also involve the government to change their priorities, and such would be again coming in variable interest. For example, जिस तरह तुर्की में इस्लामिक पार्टी की जब विक्ट्री हुई है, उन्होंने फतह हासिल किया against the parties which were secular. So these parties have started their own manifesto and started their own priorities. So they started introducing different kind of Islamic reforms. So such reforms are linked with the variable interest because there is a change in political parties. There is a pressure group now being formed by a political party, and as a result, there are different kind of new steps being involved, which are now to protect those works and those events. So such kind again would be coming under variable interest as well. Another example of variable interest is the US interest in Pakistan during Cold War. So you can see that the US has a variable interest in Pakistan. कभी US का इंटरेस्ट बढ़ता है पाकिस्तान में, कभी कम हो जाता है, कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा पैदा होता है. So you can see it is a variable interest of US. It is not permanent. It is changing because US is analyzing the situation and then acting accordingly. तो जिस तरह कोल्ड वॉर के दौरान US was very friendly towards Pakistan because it has its own interest to prevent communism in the region. तो उस वक्त पाकिस्तान के साथ बहुत फ्रेंडली था. इसी तरह कोल्ड वॉर के बाद US ने पाकिस्तान से अपना मुंह फेर लिया and it was not cooperating with Pakistan. As a result, there came a very drastic change in the region, and the forces of Taliban and the forces of Islamic movements got strong hold, and the jihadi groups become very strong, जिसकी वजह से 9/11 का वाक़या हुआ. और आखिर में US अगेन मजबूर हुआ कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे और पाकिस्तान के साथ ज़्यादा इंगेजमेंट रखे. और इवन US गवर्नमेंट ने खुद तस्लीम किया कि उनकी गलती थी कि आफ्टर कोल्ड वॉर, after the disintegration of USSR, it left Pakistan alone. It was a great mistake. So can you see that this kind of interest is called variable interest, कि कब वो US पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, फिर उसको तनहा छोड़ देते हैं, फिर दोबारा इन्वॉल्व होते हैं, because their interest keep on changing, and as a result the policy also keeps on changing. The next interest is called general interest. The general interest refers to interests that are related to a large number of nations. They may be related to multilateral trade, diplomacy, power, etc. तो ये जो interest हैं, they are basically held by a larger group because they are general, they are not specific. कि वो interest हैं जो कि कई states के common हो जाते हैं, क्योंकि ये आम है, हर स्टेट चाहता है कि वो इसको हासिल करे. तो ये इंटरेस्ट जो कि कुछ स्टेट्स के अंदर मुश्तरक हों, कुछ इंटरेस्ट स्टेट्स के अंदर मुश्तरक हों, सो सच इंटरेस्ट वुड बी कॉल्ड जनरल इंटरेस्ट. इसकी एग्जांपल्स आपको दी जा रही है कि इन दे मे बी रिलेट टू ट्रेड. जिस तरह हर एक मुल्क का इंटरेस्ट है कि वो अपनी तिजारत को मजबूत करे और ज़्यादा मुल्कों के साथ वो अपनी तिजारत करे जहाँ पे उसको ज़्यादा फ़ायदा हो. इसी तरह हर एक मुल्क चाहता है कि वो अपने मसाइल को डिप्लोमेसी से हल करे. एंड इसी तरह एवरी स्टेट वांट्स टू एक्वायर पावर. सो अगेन दिस इंटरेस्ट आर जनरल. They are held common by a larger number of states, and therefore the states pursue their general interest. Example is again given. The Britain general interest was to maintain balance of power in Europe continent. This was a general interest. The Britain always want that in Europe there is a balance of power, because if there is balance of power, then this means that no power would be so strong
to conquer the whole Europe. So this was one of the general interest which was applicable to all the states, and all the states liked that policy. Similarly, all Muslim countries have their general interest in Saudi Arabia for the holy places. तो ये हमारा मुस्तकिल मफाद भी है, और ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका एक जनरल इंटरेस्ट है सऊदी अरब में. सारों का एक मुश्तरका एक कॉमन इंटरेस्ट है कि दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन सऊदी अरेबिया एंड द होली प्लेसेस एज वन ऑफ आवर बिलीफ, and therefore we would always try to protect this general interest. The last interest is the specific interest. Specific interest, as you can see, is specific. It relates to a specific nature of a state. Pakistan specific interest of friendly relation with Arab states. वो interest हैं जो किसी रियासत के लिए मखसूस होते हैं, वो सिर्फ वही रियासत उसके ऊपर अमल पेशा होता है, उसके ऊपर अमल करता है. जिस तरह पाकिस्तान का जो एक मखसूस इंटरेस्ट है वो ये है कि जितने भी अरब स्टेट्स हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखिए, क्योंकि पाकिस्तान बीइंग इटसेल्फ एन इस्लामिक आइडियोलॉजिकल स्टेट wants to establish good relation with all the Muslim countries. And as comparing to this, again Arab countries being more closer as they are custodian of the holy places, so Pakistan has a very specific, very particular interest in the Arab states. Similarly, the trade between two countries is also specific interest. दो countries के बीच में जो उनके एक मखसूस उनके मफाद हैं कि उन्होंने कैसे अपने मफाद का दिफा करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है. जिस तरह अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, तो ये यहाँ पे दोनों मुल्कों के एक स्पेसिफिक मखसूस इंटरेस्ट आएंगे. With this we come to the end of today's lecture. Before we finish, let's have a summary of today's lecture. ये चैप्टर जिसका नाम नेशनल इंटरेस्ट था, इसमें हमने पहले इंटरेस्ट को डिफाइन किया कि what we mean by interest and then what we mean by national interest. The national interest are those goals, those objectives, those ends for which a nation struggle, for which a nation strives, because the people think, because the nation think that those goals, those targets, those ends are beneficial for the nation. तो इसलिए एक नेशन उनकी हसूल के लिए मुसलसल कोशिश करती रहती है. उसके बाद हमने डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट किया, एंड इन दिस वी डिस्कस्ड हाउ नेशनल इंटरेस्ट डेवलप्ड थ्रू आउट द एजेस. नेशनल इंटरेस्ट is not a very old concept. It has a recent growth. In the Middle Ages, national interest was linked with the interest of church. तो जो भी interest of church था, जिसमें चर्च का दिफा, उनकी अकायद का दिफा, चर्च की हिफाजत करना, उनके टीचिंग की हिफाजत करना, so this was something that was called as national interest at that time. After the Peace of Westphalia, when there was a struggle in which the anti-church forces finally become strong and the power of church was weakened and the prince got power, so as a result the national interest was regarded as the interest of the king. It was regarded as the interest of the prince. तो जो भी king का मफाद था, जो भी prince का मफाद था, it was taken as the name of national interest. After this, there was a struggle between democratic forces and monarchical forces, in which finally the democratic forces won, and as a result the interest changes from, it shifts from the interest of the king to the interest of people or the interest of the nation. As a result, we have national interest forming as a result. So this was a development of national interest. Then we discussed the different types of national interest, and the different types were primary interest. These are the interests which are very superior, which comes first, and in this there is no compromise, no negotiation is possible on primary interest. इसके examples में हमने बताया
कि the security of people, the security of the land, and the protection of culture are some of the examples of primary interest. Then we discussed secondary interest. These are interest which comes after primary interest, and they are again very important. इसके examples में हमने किया the protection of people outside in other countries and the protection and immunities of diplomatic staff serving in other communities. Then we discussed about permanent interest. These are those interests which do not change with time. They are kept for a longer period of time, and the change is, if there is any, it is very slow. It is not noticeable. तो परमानेंट इंटरेस्ट में जो एग्जांपल्स आपको बताई गई हैं उसमें द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स इन द होली लैंड. सो वी आर ऑलवेज हैविंग दिस इंटरेस्ट that we will always protect our land and we will protect our sacred places. So this is one of the example of permanent interest. Then we discussed about variable interest. Variable interest are those interests that changes with time. They are not constant because there would be a change in time. There would be a change of governors. There would be a change of policies. And as a result, these interests are not common, and as a result, they would keep on changing. Then we discussed about general interest and specific interest. General interest are common among a number of states, while specific interest is interest which is very specific to a particular country. तो ये वो interest हैं जिसको हमने आज discuss किया. I hope you have understand this unit. I wish you best of luck. Allah Hafiz.